Assalamualaikum, dear participants. Thank you for joining the workshop. This workshop is about ISO 9001 Quality Management System, and this session will be conducted by trainer Sir Imtiaz. He will be describing the course thoroughly. Sir, I'm making you host so you can continue the session. Right. Okay, sir, you can continue now. One second. Right. Everybody. Assalamu alaikum, everybody. As mentioned, my name is Syed Imtiaz Ahmed. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. As mentioned, first of all, welcome to Omni Academy, this workshop, and the title, as mentioned, is Career Counseling Webinar for ISO 9001 Quality Management System. All right. Now, I would like to take you to the definition of and what is all about ISO. The first question is, what is ISO? So ISO is an international standard of organization which develops, it is basically ISO, but it was originally drafted as IOS, right? So they shuffled the wordings of O and S between themselves to make it ISO. So that is an international organization for standardization, which makes a sense. IOS does not make a sense in English, right? So it is an organization which develops standards, which makes the standards, okay, which helps organization to meet the customer requirements and satisfaction with the help of those standards. Kindly mute kar dein, please. Thank you. Then it deals with the requirements of such an organization which needs to develop a quality within their work in their organization. But this organization does not give out any certificates, nor it certifies any company, nor it control any bodies like SGS है, UCAS है, right? इस तरीके की जितनी भी certification bodies हैं, they are all self-employed. They are not accredited. They are not certified by international standard of organization. Second one is the ISO certification जो है, जो 9001 की certification है, that is most recognizable and most usable certificate या standard जो कि है, जो कि use होता है food industries वगैरह के हवाले से, metal के industries के हवाले से, construction की industries के हवाले से, इसमें कोई it is not bound for the internal this thing type of industry. It is generally applicable to all those industries which wants to go for the quality in their work, which wants to develop the quality. So 2018 में एक सर्वे किया गया था ISO स्टैंडर्ड की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि 8,78,664 सर्टिफिकेट्स जो हैं इशू किए गए थे 2018 में डिफरेंट कंपनीज को. 2019 में यही सर्टिफिकेट जो है 8,78,000 से बढ़ के 8,83,000 हो गए. 521. This is the quantity of certificates being issued in 1 year, right? Right from 2018 से 2019 तक जितने certificates issue कर गए, उनकी एक survey किया गया था International Standardization of Organization की तरफ से, कि वो ये देखना चाह रहे थे कि कितनी companies या कितनी industry sectors इस चीज पे गए हैं. उन्होंने certification किया है for ISO 9001 पे. Then 2020 में ये जो तादाद है ये और increase हो गई थी, goes to 9,16,842 certificates have been issued
under the umbrella of ISO 9001 quality management system. This is the most well-known standard in this thing. इसके जो है 1 million companies अब तक की जो है इस पे over 170 parts, different parts of world, different countries of world इस पे certify हो चुकी हैं. नेक्स्ट आ जाता है कि क्वालिटी क्या है. अब हमने आईएसओ की बात कर ली, हमने आईएसओ को डिफाइन कर दिया. वी हैव डिफाइंड 9001 what is it, but what is quality, because that is one word which is being looked by everyone everywhere, in everything, in every aspect of the services, whether it's services, whether it's product, whether it's anything, fruits and vegetables, anything. So quality को define करते हैं. Quality की जो definition है, that is, it is a comparison of how good something, यानी कि एक जैसी दो चीजों का आपस में कंपैरिजन कि एक कैसी है और दूसरी चीज कैसी है. ठीक है, सिमिलर थिंग्स में कंपैरिजन को कहते हैं कि एक बेहतर है या दूसरी बेहतर है, उसको क्वालिटी कहते हैं. फिर क्वालिटी की दो और डेफिनेशंस हैं, जिसमें एक आ जाता है डिफेक्ट फ्री, यानी कि कोई भी हम चीज देखते हैं, आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी लैपटॉप खरीदते हैं, उसमें एक चीज छोटा सा स्टिकर होता है QC पास का. ठीक है, दैट इज क्वालिटी, मींस कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है उस प्रोडक्ट में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, एनीथिंग. आप इवन बच्चों के टॉयज भी ले लें तो वहां पे भी जो है एक इस पे लिखा होता है, गाड़ी ले लें रिमोट कंट्रोल वाली, तो उस पे या उसके डब्बे पे या उसकी पैकिंग पे या उसके जहाँ पे सेल लगाते हैं वहां पे एक छोटा सा स्टिकर लिखा होता है जिसपे लगा हुआ होता है QC पास. ठीक है, तो दैट इज अनदर डेफिनेशन कि क्वालिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग डिफेक्ट फ्री. तीसरी डेफिनेशन है क्वालिटी इज अ डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. हम जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, जब हम हमारी नजरों से जब वो QC पास का स्टिकर गुजरता है, तो इट मींस कि हाँ ठीक है, हम मुतमईन हो जाते हैं, वी आर सेटिस्फाइड कि दिस प्रोडक्ट इज ओके टू परचेज. तो दैट सेटिस्फैक्शन जो है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो एक डेवलप करता है, वो एक स्टिकर सिर्फ वो एक डेवलप कर देता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कि ये हर उस प्रोसेस से गुजरा है जिसके बाद क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा या जिसकी वजह से कोई क्वालिटी खराब नहीं होगी. तो हर उस चीज से ये गुजर चुका है, हर उस प्रोसेस से, प्रोडक्शन के, पैकिंग के, डिलीवरी के, स्टोरिंग के, हर उस प्रोसेस से गुजर चुका है जहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है या वो चीज को खराब कर सकती है. ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया ISO 9001 जो है एक मोस्ट जेनरिक स्टैंडर्ड है. उसमें कोई कैद नहीं है, कोई उसमें बाउंडिंग नहीं है कि वो सिर्फ फूड इंडस्ट्री यूज कर सकती है या सिर्फ एनवायरनमेंट वाले यूज कर सकते हैं. क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO 9001 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो पेट्रोल भी अगर बना रहा हो तो वो भी उसको यूज कर सकता है, कोई टॉयज बना रहा हो वो भी उसको यूज कर सकता है, कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केट है वो भी उसको यूज कर सकती है. राइट, इसके बरक्स या एज कंपेयर टू ISO 9001 दूसरे जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो पर्टिकुलर हो जाते हैं कैटेगरी वाइज. यानी कि जैसे अब ISO 14001 है, वो सिर्फ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, एनवायरमेंट से उसका ताल्लुक है. ठीक है, ISO 22000 है, वो सिर्फ फूड सेफ्टी से ताल्लुक रखता है, या हैसअप है तो वो सिर्फ फूड सेफ्टी से ताल्लुक रखता है. ठीक है, 50001 है, ISO 50001 जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है. ISO 31000 है, वो रिस्क मैनेजमेंट है. तो ये कुछ हैं जो जेनरिक हैं, जो जेनरिक नहीं है, जो स्पेसिफिक हैं कैटेगरीज वाइज अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑफ वर्क. लेकिन ISO 9001 चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें 1000 आदमी काम कर रहे हो, उसमें 15 आदमी काम कर रहे हो, 10 आदमी काम कर रहे हो, 2 आदमी काम कर रहे हो, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी सर्विसेज के ऊपर. ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो. नेक्स्ट जो है मैं इसकी डिफाइन कर दूं एडिशंस ऑफ ISO 9001. ISO 9001 का स्टैंडर्ड सबसे पहले 1987 में इशू हुआ था, जो उसका फर्स्ट एडिशन था. उसमें उस एडिशन में फोकस किया गया था क्वालिटी एश्योरेंस
बट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन और उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर, उसकी सर्विसिंग या उसकी फाइनल इंस्पेक्शन के ऊपर। मतलब ये कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जब की जाती है तो सबसे पहले उसकी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का पे फोकस किया जाता है कि उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। जब ये फाइनल हो जाता है फिर आता है प्रोडक्शन का प्रोसेस कि अब उसको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट को या सर्विस को डिलीवर करना है। फिर उसकी इंस्टॉलेशन, अब उस प्रोडक्शन फैसिलिटी को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनें चाहिए, उसकी इंस्टॉलेशन, फिर उनकी सर्विसिंग। तो ये सब जो है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने स्टेजेस से चीज को गुजरना पड़ता है, या इतने स्टेजेस को हम पार करते हैं तब जाके हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उस प्रोडक्ट की फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। इस पूरे सिनेरियो पे बेस्ड करता है 1987 का स्टैंडर्ड। सेकेंड एडिशन इसका यूज हुआ था, इशू हुआ था 1994 में, जिसपे प्रिवेंटिव एक्शंस पे फोकस किया गया था कि अगर कोई चीज उस प्रोडक्ट की, एक टॉय है, एक टॉय कार बना रहे हैं, रिमोट टॉय कार, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार, उसको प्रोड्यूस करने में जो स्टेप्स यूज हो रहे हैं, उन स्टेप्स की क्वालिटी जहां जहां पे खराब हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए उस पे ज्यादा फोकस किया गया था। और लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उस पे जो है फोकस किया गया था कि वो चेकिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा इसका वर्जन आया था या इसका एडिशन आया था 2000 में, जिसमें पूरे प्रोसेस मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया गया। सॉरी, क्लास प्रेजेंटेशन बनाई हुई है इसने। काइंडली जो भी कमेंट्स हैं वो प्रेजेंटेशन के आखिर में रख ले। ठीक है, थैंक यू। 2000 में इसकी जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर काम किया गया था कि पूरा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है उसको खाली फाइनल इंस्पेक्शन या फाइनल प्रोडक्शन के ऊपर नहीं, फाइनल टेस्टिंग के ऊपर नहीं, पूरे प्रोसेस मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाए इंस्पेक्शन के लिए। फोर्थ एडिशन और फिफ्थ एडिशन, फोर्थ एडिशन इसका आया था 2008 में। ठीक है, जिसमें कोई नई रिक्वायरमेंट्स नहीं आई थी, जो पिछली रिक्वायरमेंट्स थी 3 स्टैंडर्ड्स की, उन्हीं पे फोकस किया गया था। और जो फिफ्थ आया वो 2015 में आया है, जो अभी लेटेस्ट है, जिसपे प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल, PDCA साइकिल के तहत काम हो रहा है। बेनिफिट्स ISO के हैं वो कॉस्ट कटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज प्रॉफिट। यानी कि ये 3 हमारे मेजर गोल्स होते हैं जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग करे, अपने कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाए। ये थी मेरी तरफ से स्लाइड्स एंड डिटेल्स। अब इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। If anybody has any question, you can ask to the trainer. Otherwise, we will end the session. सर ये कोई कोर्स आपके अलावा करवाता है जो सही से करवा दे? जी, हमारे पास इनके ट्रेनर्स अवेलेबल हैं और आप मुस्तफ़ा साहब से जो है उनकी गाइडलाइंस ले सकती हैं ट्रेनर के हवाले से। हमारे पास और भी ट्रेनर्स अवेलेबल हैं जो ये कोर्सेज करवाते हैं। सर मेनली 22,000 और 9,001 में क्या डिफरेंस है? 9001 एंड 22,000 दे आर 9001 जो जेनरिक है वो सब पे एप्लीकेबल हो सकता है। 22,000 जो है वो सिर्फ फूड सेफ्टी पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि वो हैसप और फूड सेफ्टी
HACCP जो प्रिंसिपल्स हैं हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एंड फूड सेफ्टी पे बेस्ड करता है, वो सिर्फ फूड सेफ्टी को केटर करता है। 22,000 ना? जी, जबकि Okay. ISO 9001 सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करता है। Okay, sir. Jazakallah. मैं समझ जाता हूँ। Okay, sir. Thank you so much for the session. If anybody has any query, you can still ask. Otherwise, you can contact us through the given number in the chat. आपको कोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी और कोई अभी स्टिल इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ भी बता सकता है। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 2 मंथ्स का है। अभी हमारे कोर्सेज पर 20% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है जो कि आप 5 अप्रैल तक अवेल कर सकते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है एनरोल होने के लिए तो वो बता सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कॉस्ट क्या है इसकी? इस कोर्स की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो 40,000 थी, लेकिन अभी इन डिस्काउंट की वजह से वो 30,000 हुई है। बाकी फर्दर डिटेल्स मैं आप सबको दे देता हूँ ऑन व्हाट्सएप ये चैट। आप सर्टिफिकेट लोकल देंगे या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अलग पेपर देना होगा? ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप बाद में सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए एग्जाम अटेम्प्ट कर सकें।